Good evening, everyone. Good to have you here, all coaches. Hi, sir. Good evening. Hi, sir. Good evening. Open up your videos if possible. Good evening, sir, Good and evening, sir. congratulations for this wonderful beginning. Good So hope evening, it's a sir. beginning now. So good to have you all. Few more will join us. All Open the up your best, videos. Ruby ma'am. Thank you. I'm a little nervous from you. Ruby ji, all the अरे best. नहीं ऐसे I मत Best सोचिए wishes, thank you ma'am. so please. much. I'm going to speak to all learned people today. No. We are looking forward to hear from you. I'm here to I- learn. Exactly. I'm going Correct. to give We are my looking best forward to today. hear from you. All the best. Yeah. Thank you. I'm going to give my best today. So let me tell you something about Ruby. Ruby Wadhwa is a seasoned coach. She is a professional storyteller with a brand name Story Smith. She is telling stories to the world around, making people learn through stories. She is a certified parental coach with Deep. She is a certified career coach. She is also into brain developmental activities, and her forte is improving concentration of child. Means she can take up concentration to 45 minutes. And a lot of students she has worked with, a lot of examples, prodigies she has. So exemplary work she has done in this field. So today I take privilege to introduce Ruby to all of you. And now it is Ruby's show where she will be addressing all of you as parents and parent coaches both, where she will be talking about how to improve child's concentration. She will be also talking about majorly her discussion will be focusing on how to reduce this exam stress. So get set ready for exams and get set ready for Ruby's program. All the best, Ruby. Thank you so much, sir, for that wonderful introduction and giving me this opportunity, choosing me to conduct this session for all learned people here today. Thank you so much, sir. And thank you all of you for trusting me and being here to listen to me today. And yes, today, let's type the word ready in the chat box. Are you all ready for today's session? Yes. Wonderful. Let me just share my PPT. So can you all see my screen? Are you all ready for today's session? And can you all Yes. see? Yes, Thank you. Thank you so Yes. much. Yes. Yes, we can Well, see. this is the need of the hour today, and yes, this is an upcoming need for the parents as well as children today. So yes, let's start this session today. So do you all feel that during the exams, even the parents are stressed out? What do you all feel? Yes. Parents are also stressed out, na? Yes. More than the child. More than the child, yes. And most of the times that their stress is being passed on to the children. It's like the Correct. environment is created automatically. Isn't that true? Right. So True. first of all, we need to manage the parents first. Uh, Still, I believe in this statement, relax. Being relaxed is like, it's like still waters with no ripples. That brings about the clarity of mind. And yes, you can go ahead very beautifully when you know what needs to be done. When you're relaxed in a cool and calm and composed mind, only you can think better. So I've created this acronym, relax, first, and we will start elaborating the whole what needs to be done with parents first, and then
how children can also manage themselves with this acronym. So relax is first R that I'm talking about. This is about reminding yourself. Just remind yourself of the times when we as children, when we were going to face the exams, what kind of an environment did we have in our houses? How our parents used to deal with us. And anybody would like to share? I think, पढ़ लो, don't waste your yeah, time. okay. So basically, our parents, now that a lot of parenting strategies have come up and a lot of, we are aware parents now. But in our times, our parents used to, they were stressed and they used to deal with that. पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा. क्या क्यों time waste कर रहे हो? All those negative conversations used to be there and we used to be more stressed. So let's think about ourselves and not do the same with our children. We need to be, uh, creating a positive environment for our children, because anyways, negativity is going to be like leakage in a pipe, so it's going to drain off their energies. So we need to work on recreating an environment which is conducive to learning, wherein, first of all, first and the foremost, we need to create a specific place for a child which is, like clutter free, and wherein they can sit properly and think and work to their optimum, something like a table and chair. Again, the human mind works on association. So if we sit on the bed, so we will not even realize when we start studying, pata nahi kab concentration set in hoga aur neend aa jayegi. That is a beautiful symptom of concentration setting in. जैसे ही concentration आता है, नींद आ जाती है, and we will not even realize हम कब सो गए, right? सो टेबल और चेयर पे बैठना, एक तो स्पाइन स्ट्रेट रहती है, कंसंट्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, एंड एक प्लेस प्रोवाइड करना बच्चे के लिए विच इज यू नो कूल, काम और क्लटर फ्री, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जितने कम से कम होंगे उस रूम में, दैट इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। अब डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, टेबल टॉप भी हो तो उसको रिमूव करना है। वी हैव टू कीप इट क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज्ड हो जगह, राइट? देन एनवायरनमेंट के अंदर अब उसको तो हमने स्पेस प्रोवाइड कर दी, दैट डजंट स्टॉप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट मैनेजिंग द होल हाउस, इन द सेंस कि उस रूम में तो चलो टीवी नहीं रखा और मे बी गैजेट्स हमने कम से कम रखे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड करा है, बट बाकी रूम्स में जोर जोर से टीवी चल रहा है या ऑल दैट, वी नीड टू मैनेज दैट ऑल्सो। वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट मैनेजिंग द अदर रूम्स ऑफ द हाउस ऑल्सो, एंड यस, कूल और काम बाकी रूम्स भी हों, कि चलो ठीक है हमने बिठा दिया वहां पढ़ने, अब बाकी रूम्स में चाहे जो मर्जी करें, नो, दैट इज नॉट देयर। Then we need to organize everything. Whatever resources are required for the child, we need to provide all of that in advance, not that last minute we are rushing for something, usko ye chahiye. Whatever resources required by the child, that has to be planned ahead, and that needs to be provided to the child in advance. So then, uh, we need to be around the house, but yes, we should not be hovering for the child. पॉजिटिविटी के साथ, आई मीन टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, एम्पथाइजिंग विद द चाइल्ड। वी नीड टू बी अराउंड इन द हाउस बट नॉट होवरिंग। कितना हो गया, कितने चैप्टर्स बचे हैं, all that hovering should not be done. That is going to again create stress for the child. We are stressed definitely, and if we keep doing that for our children, that is not going to help them anyways. And yes, keeping a positive environment in the house, like we have to curb the fights and loud interactions among the family members, because again that is again going to create stress for the child. Again, we are going to steal away the calm and composed situation of the mind, the state of mind of the child. So again, we need to keep a peaceful environment at home. That is very, very important. And yes, if you are working, so then we need to decide one of the parent can be at home and be there positively to support the child. And if the board exam is going to come over, then we can organize, like one of the parent can accompany. So again, all your presence in the house with the child is going to empower. You have to be empathetic, you have to be understanding, and yes, whatever interactions you have, that has to communicate that you are there for the child, you are going to help the child. Then E is to eliminate all negative talks with the child, like don't discuss the past performances, whatever. Pre boards में तो आपके marks नहीं आए थे,
No, don't talk anything negative about the past. आप तो कितना भी पढ़ लो, आपके इतने ही marks आएंगे. No negative talks are going to happen in the house when exams are going to come over. Anyways, it doesn't help. किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं होता. Comparison. शर्मा जी का बेटा तो इतनी जल्दी लर्न कर लेता है, आप इतने घंटों एक ही टॉपिक पे लगे रहते हो. नो, नो comparisons at all. Whatever the child is doing, you have to appreciate and accept. And if you can empower, if you can help, you can come and contribute in that part. किसी भी तरह का नेगेटिव इंटरैक्शंस कितना हो गया क्या, नथिंग, नो नेगेटिव टॉक इज गोइंग टू हैपन इन द हाउस, बिकॉज अगेन लीकेजेस नहीं चाहिए, हमें एम्पावर करना है बच्चे को. देन थर्ड इज वी हैव टू लिमिट आवर ओन डिजायर्स इन द सेंस, उसको तो बोल दिया कि टीवी वगैरह आप ना देखो तो अच्छा है, बट देन वी शुड नॉट कीप ऑन स्क्रोलिंग द मोबाइल्स. आई मीन आवर एक्शंस आर गोइंग टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. अगर आप जो बोल रहे हो आप खुद फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के लिए वो ज्यादा रेलेवेंट होगा. जो आप करके दिखाओगे उसका ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है बच्चे के माइंड के ऊपर. सो यू टेल, you give an instruction to your child not to do something, you also follow that. That is going to be more effective. And in fact, if we talk with reasons with our children, they understand better. ये नहीं करना तो आपने बोल दिया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना वो समझा दीजिए. Right. And then you can we can also do that. We may not invite people to come over during that times, and we may not also go out during those times. So all that discipline that we are implementing for the child is also going to be implemented on us, so that the child understands what we are speaking. We are in sync with what he is also trying to do. Then we have to pay A is for paying attention to manage ourselves. Stress हो रहा है, but then definitely stress क्यों हो रहा है उसको understand कर लो. And if I understand how to emotionally regulate myself, that is going to be of some help. Otherwise कोई फायदा नहीं है. मेरा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बच्चों पे पास होगा, होता ही होता है. सो अगेन बहुत सारे काम होते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है. और इनफैक्ट एक और स्ट्रेस होता है कि इसका ध्यान रखना है, मोबाइल पे तो नहीं लगा हुआ, पढ़ रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल है, ऑल दैट इज गोइंग ऑन. सो एक टाइम मैनेजमेंट का आई टॉक अबाउट 4 days ऑफ टाइम मैनेजमेंट, की जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल वर्क यू हैव टू डू ड्यूरिंग द डे. और फर्स्ट उसमें से एनालाइज कर लो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर नहीं ना किए बिना चल सकते, जस्ट ड्रॉप दैट वर्क. कोई काम बाद में हो सकता है, उसको डिले कर दो. किसी और से करवा सकते, जस्ट डेलीगेटेड. और फिर भी आप ही को करना है तो जस्ट डू इट. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू मैनेज योर टाइम ब्यूटिफुली. वन, एंड प्लस टाइम मैनेज होगा और बहुत सारे काम नहीं करने, बट माइंड को भी शांत रखना, क्योंकि स्ट्रेस अपने ऊपर भी नहीं लेना. डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर किसी बात से स्ट्रेस हो रहा है उसको एक्सप्रेस ना हो, और इनफैक्ट यू हैव टू स्टे काम एंड कंपोज. दैट इज इम्पोर्टेंट. आप खुद को संभाल पाओगे, अपनी केयर कर पाओगे, तो उसकी केयर कर पाओगे. देन एक्स इज टू एक्सचेंज योर थॉट्स. यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं करना कि Really डेफिनेटली sorry to interrupt in आपका एग्जाम between. कैसा हुआ. I'm really very sorry to interrupt in between, but could you please explain the 4 Ds once again? I'm not able to understand that. 4 Ds. Okay, I'll do it again. So 4 Ds of time management is, first of all, you make a list of the tasks that you need to do during the whole day, one. And then in that list, you just figure out a few tasks that if you don't do it on that particular day, it's not going to impact anything. You can drop those those tasks in that day. And the second is something which doesn't need to be done now, you can delay that. कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे. And then third is a list of tasks which somebody else, you can take some help from somebody else can do it. Just get it done. Don't spend your energies doing everything yourself. And last but not the least, what only you can do, just do all those works. I think most of the stress comes from, we have a lot of work piled up on our heads. We are doing a lot of things. I think if we can manage that, we will not be stressed out. And that's how, that is automatically, so many things that parents do is automatically sometimes passed on to children. They also understand that chapter of managing their time well. Do you all agree? All right. Thanks a lot. Yes, yes. Thank you. My pleasure. Then we need to exchange our thoughts. We don't have to, the exam is done.
Now we don't have to spend energies on अच्छा अच्छा हो ये wrong हो गया आपका एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन wrong हो गया, oh हो, that is again going to create stress. Don't discuss the question paper in detail, but in fact you can talk about the feelings. How are you feeling now? Are you feeling good? मजा आया? अच्छा हुआ? The emotions and feelings need to be addressed at that point of time. So you need to exchange your thoughts. That's very important. The energy that your child is going to possess while conducting that exam is going to come from you. You are the source of energy for your child. So definitely, if we monitor some teams, in sports and all, when we see the teams working together, just by looking at the body language of the teams, operating, you can make out which team is going to be the winning team. A lot of energy, the high five, wow, yes, we can do it. You can see that energy already existing in that team. So winning is a mindset, and we need to create that positive energy in our children. We need to empower them. So if something has gone wrong, it's all right. गलत हो गया कोई बात नहीं. So that's not the end of the world. What we communicate, what we feel, it's automatically passed on to our children. And now we have started understanding marks is not everything. So let's not stress our children. जो हो गया सो हो गया. अब आगे चलो. Next exam की तैयारी करो. So definitely, this is, I think, रूबी जी, this. कैन आई इंटरप्ट यू? आई हैव अ Yeah, क्वेश्चन. yeah. मैम, आप जैसे बता रहे हैं कि जब एग्जाम्स का बच्चे पेपर देकर आते हैं तो डिस्कस ना करें उसके बारे में, लेकिन मैंने अपनी बेटी के साथ ये चीज बहुत देखी है कि वो जब भी एग्जाम देकर आती है तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत तवज्जो देती है कि मैं क्या करके आई हूँ, मेरे कितने मार्क्स है. दो मैंने उनको बहुत समझाया है कि जो हो गया गलत हो गया, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि इस बात को पीछे नहीं छोड़ते और वो अपने एग्जाम जो देकर आते हैं उनको बहुत एग्जामिन करते हैं बड़ी बारीकी से, और कहीं ना कहीं उनको एग्जाम स्ट्रेस होता है, उनके लिए थोड़ा सा आप टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, definitely, I'm coming to all of that. I'm coming to that. See, ओके. definitely, एक बात को अंडरस्टैंड करना, माइंडफुल होना, आई मीन लिविंग इन द प्रेजेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट आज जैसे अब जो हो गया, मतलब जो वो मोमेंट निकल गया ना, मैं एग्जाम देकर आई हूँ, हो गया. अब मुझे एनर्जी कहाँ लगानी है? नेक्स्ट एग्जाम में. सो आई हैव टू गियर अप माई सेल्फ. अगेन वो टाइम मैनेजमेंट अगर ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, उस पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर वो एंग्जाइटी ही क्रिएट करने वाला है, तो हमें समझाना है बच्चे को कि उस पर टाइम मत वेस्ट करो. जो हो गया सो हो गया, अब बाद में देखेंगे. इट्स ऑल राइट. वी हैव टू कम्युनिकेट. हम जो जो कम्युनिकेट करते हैं बच्चे को, बच्चे आराम से अंडरस्टैंड करते हैं. अगेन, हाउ यू कम्युनिकेट, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. बच्चे उसको समझते हैं. और डेफिनेटली आई एम कमिंग टू ऑल दी अदर टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू डू विद चिल्ड्रन. एंग्जाइटी क्रिएट होती है, अगर गलतियां पता चलती है ना, एंग्जाइटी क्रिएट होती है, बच्चों को भी होती है और हमें भी होती है, और वो कम्युनिकेट होती हैं. इतने सारे रॉन्ग हो गए, इतने सारे राइट हो गए, आई मीन ऑल दैट, इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए. Then let's come to the relax for children. Again, relaxation is very, very important, and I strongly believe relaxed रहना, mind का relaxed रहना, इसी सिचुएशन में आपके माइंड में क्लैरिटी आती है, और इसी सिचुएशन में आप फोकस कर पाते हो. आपके जस्ट 20% एफर्ट से आप 80% अचीव कर पाते हो. रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब कैसे रेगुलेट करना है अपने आप को, रिलैक्स करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसको काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट लेट मी जस्ट टच अप द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टुडे. तो रिलैक्स का आर फॉर चिल्ड्रन, इसमें क्या है? वी द चाइल्ड हैज टू रिमेम्बर टू टेक इनटू अकाउंट हाउ मच वर्क नीड्स टू बी डन. कितना पढ़ना है. आई मीन दिस इज आल्सो कॉल्ड एक टास्क क्लैरिटी सेशन. सो कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितना सिलेबस है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, और यस हाउ मच टाइम आई एम लेफ्ट विद. उसका पूरा एक कैलकुलेशन है. अगर एक आप बैठ के बच्चे के साथ ये कर सके, जस्ट टेक इनटू अकाउंट कितना है, काम कितना है, और फिर अंडरस्टैंडिंग में कि हम मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मतलब मुझे क्या बहुत इजीली समझ में आ रहा है, और मेरे एरियाज ऑफ चैलेंजेस क्या है, किस पे ज्यादा टाइम लगाना है और किस पे कम टाइम लगाना है. ऑल दैट एक असेसमेंट, मतलब एक पेपर के ऊपर क्लियरली बच्चे को पता हो कि भाई क्या क्या, कहाँ कहाँ, कितना कितना एफर्ट लगेगा. ऑल दैट. अगेन, अब द चाइल्ड ऑल्सो हैज टू चूज अ प्रॉपर प्लेस टू स्टडी, कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन कैसे फ्री हो, और वो जगह वेल लिट हो, वेंटिलेटेड हो. ऑल दैट, मतलब दे हैव टू अंडरस्टैंड ये सारी कहाँ बैठ के पढ़ना है. आई मीन अगेन, बेड तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, टेबल और चेयर, और कहाँ पे कौन सा कोना हो घर का जो कंफर्टेबल है, वो बच्चों को
चूज करना है ऑटोमेटिकली, दे विल नो यहाँ पे मैं कंफर्टेबली ज्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो सक्सेसफुल होने का होता है, दैट इज कॉन्फिडेंट होना कि यस आई कैन डू इट। सेल्फ एस्टीम बच्चे का हाई होना, राइट। तो सबसे पहला टास्क आई वुड सजेस्ट हियर इज जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर अकम्प्लिशमेंट्स। तो एक बार बैठ के पेरेंट या चाइल्ड या बच्चा खुद भी पास्ट में क्या क्या अकम्प्लिश करा है, उसकी लिस्ट बना ले। मैं ये और ये कर सकता हूँ, आई एम पावरफुल, वो एम्पावर्ड फील करना शुरू कर देगा। तो स्टार्ट करने से पहले पहले सिलेबस का अकाउंट होना, और प्लस रिफ्लेक्ट ऑन योर अकम्प्लिशमेंट्स कि मैंने क्या क्या पास में किया, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। इतने हाई परफॉर्मर्स जितने भी होते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है कि एग्जाम से पहले डाउट आ जाता है। बड़े बड़े प्लेयर्स को, बड़े बड़े परफॉर्मर्स को, टॉप परफॉर्मर्स को डाउट आना बड़ा नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। बट यस, उसमें उसको हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं? हम अपने अकम्प्लिशमेंट्स को याद करके, राइट। तो अगेन अब टू डू लिस्ट एक स्पेसिफिक तरीके से कहाँ बैठना है और प्लस कितना काम करना है, और मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरे एरियाज ऑफ चैलेंजेस क्या है, उसका मुझे पता होना चाहिए। then comes your, we need to empower ourselves physically and mentally, both ways। एम्पावर कैसे कर सकते हैं? अब ये कुछ चीजें होती है जो कि पहले से आप कर सकते हो। एक रूटीन फॉलो करना, रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब से जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक रूटीन जरूर फॉलो करते हैं। उस रूटीन में होने का क्या है, हमारा अगेन ब्रेन जो है एसोसिएशंस पे काम करता है। बहुत छोटी सी बात कि एक फिक्स्ड वेकअप टाइम का होना, कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं उठने वाला हूँ। बिफोर स्लीपिंग यू डिसाइड इस टाइम पे मैं उठने वाला हूँ, एंड व्हेन यू वेक अप एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो मेनी टाइम्स यू डोंट इवन नीड अ अलार्म। अलार्म के बिना आप उठ जाते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, एंड देन व्हाट हैपेंस। सो आपका ब्रेन क्या मतलब सबकॉन्शियस माइंड क्या अंडरस्टैंड कर रहा है, वाह, जो बोलता है वो करता है ये। सो यू आर फीलिंग एम्पावर्ड। ये छोटे छोटे एक्शंस जो है आपको एम्पावर करते हैं। देन व्हेन यू गेट अप, drinking water, I mean staying hydrated, that is very important. Just drink some water, and then you wake up your muscles, do some stretching exercises उठने के एकदम बाद। It's like your brain is a muscle again, तो आप अपनी बॉडी को जगा रहे हो to gear up for work। तो कुछ stretching exercises करना, and then you go on for your morning routines, and exercises फिजिकल भी होती हैं और एक्सरसाइजेस ब्रेन एक्सरसाइजेस भी होती हैं। सो बहुत छोटी छोटी चीजें, समथिंग लाइक इफ यू ब्रशिंग विद योर राइट हैंड, नाउ ब्रश विद योर लेफ्ट हैंड। तो मतलब दो लोब्स होते हैं ब्रेन की, यू आर स्टिमुलेटिंग बोथ द ब्रेन्स। सो मॉर्निंग द मोमेंट यू गेट अप, यू आर गियरिंग अप, preparing your body to work out। So ब्रेन एक्सरसाइजेस में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस, लाइक दिस इज लाइक अ बर्ड एंड यू आर ट्राइंग टू शूट इट, something like this। So you're using both the hands. When you use both the hands, you're moving both the brains। or something like pinching your earlobes। Just try doing it, all of you। दोनों दोनों earlobes को ये पनिशमेंट होती है ना हमारी, बट देन दिस इज वेरी पावरफुल। कुछ फोकस करने के केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं, एंड यस, कंसंट्रेट करना इजी हो जाता है व्हेन यू डू दिस, राइट। कैन यू फील समथिंग इन योर हेड व्हेन यू डू दिस? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, कुछ फील हो रहा है? कैमरास काफी लोगों के ऑफ है। कैन यू फील समथिंग? I'm here, Ruby ji, listening to you. Yeah, it felt। हाँ, कैन यू फील पहले समथिंग इन योर हेड? बचपन में वो कान पकड़ के खड़े होते थे ना क्लास के बाहर, वो हाँ, डेफिनेटली। बट ये उसका कुछ साइंटिफिक रीजन है, मतलब आपका कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाता है। सर जी मैम सारे वो सिग्नल्स ऑन हो जाते हैं ना, तो यस इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग थ्रू द जी ट्रांसमीटर बिल्कुल सेल्स। यस यस बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल।
So meditation, मतलब 5 मिनट ज्ञान मुद्रा में, मतलब if you sit for meditation, again that helps. So ये सारे छोटे छोटे कुछ routines हैं when you start. So it's like you are telling yourself, चलो अब तैयार है, अब हम पढ़ेंगे. So physically, mentally, you are gearing yourself for all this. So something like आई बॉल एक्सरसाइजेस, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेन आईज पे पड़ता है, तो आई बॉल एक्सरसाइजेस के पूरे वीडियोस हैं. सो विदाउट मूविंग योर हेड, जस्ट मूव योर आई बॉल्स, तो वो रिलैक्स करता है और कंसंट्रेशन में हेल्प होती है. बहुत सारी आईज की एक्सरसाइजेस है. फिर फ्लैश कार्ड्स, फ्लो चार्ट्स का यूज करना. अगेन यहाँ पर इफ यू रिमेम्बर, वी ऑल आर अवेयर ऑफ यू नो द सेंसेस, 5 सेंसेस होती हैं. जितनी ज्यादा सेंसेस आप यूटिलाइज करोगे लर्निंग के टाइम पे, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, सो यू आर गोइंग टू बेनिफिट. एज एन when we are writing an exam, if you remember, when we were writing an exam, sometimes we could, when we were writing it, we could even make out, अच्छा उस टाइम पे हलवा बन रहा था, उसकी खुशबू आ रही थी, you Correct. remember all of that, Correct. है ना? तो why can't we use that while learning also? मतलब एक इंसेंस स्टिक चला दो, अगर मेरा स्मेल वाला सेंस थोड़ा पावरफुल है, और मे बी कोई लाइट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला दो, मतलब उसमें वर्ड्स ना हो कि हम गाना ही गाते रहे उस टाइम पे. तो इफ वी कैन आइडेंटिफाई कौन सा सेंस हमारे लिए मतलब वर्क करता है, वी कैन स्टार्ट यूजिंग ऑल दैट. और फिर डेफिनेटली मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, दैट आल्सो वर्क्स. मतलब बीइंग अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स, कि मैं पढ़ूंगी तो मेरे को कौन कौन से सेंसेस मुझे हेल्प कर सकते हैं, एंड प्लस उन सबको यूटिलाइज करना लर्निंग के टाइम पे. अगर मैं विजुअल हूँ तो मेरे मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट से बहुत इजीली मैं लर्न कर सकती हूँ. बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं लर्निंग में, और मे बी अगर बच्चे भूल गए तो हम उनको याद करवा सकते हैं. सो एम्पावरिंग में हम लोग अगेन विल मेक अ शेड्यूल, एग्जाम का टाइम टेबल बनाना सब्जेक्ट वाइज, फर्स्ट कौन सा एग्जाम है अकॉर्डिंगली, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज. और बीइंग स्पेसिफिक इज टेरिफिक, कि स्पेसिफिकली हम लोग कितना टाइम डेडिकेट करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना है, और मुझे क्या इजीली लर्न हो जाता है, और किस में मेरा मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है. अगेन मेकिंग एन अकाउंट ऑफ दैट. स्टडी प्लेस तो है ही, और it should be ventilated and lit with proper light. And then again, when we are planning our day, अब ये हमने प्लान कर लिया, we have geared up for the day. अब 2 hours का जो टाइम है, we have to decide that we are going to sit, और वही 25 मिनट्स वाला पोमोडोरो टेक्निक हम लोग फॉलो करने वाले हैं 25 मिनट्स तक लगातार. सी हियर, इफ वी कैन आइडेंटिफाई द अटेंशन स्पैन ऑफ आवरसेल्व्स, किसी को क्या पता है, मुझे तो बेस्ट पता है ना, कि 25 मिनट्स तक मैं बिना हिले डुले मैं एक काम पे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. बस 25 मिनट्स ही मुझे स्पेंड करना है. अगर 20 मिनट्स है तो कोई हर्ज नहीं है, 20 मिनट्स का एक वो स्लॉट बना ले, और उसमें बैठ के हमें फिर वो कंटिन्यूअसली वो काम करना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेफिनेटली 2 आवर्स का अगर टाइम है तो उसको डिवाइड कर लीजिए, और उस टाइम पे आप क्या क्या करने वाले हैं, इसमें फिर पहले डिफिकल्ट और फिर इजी, उसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग कर सकते हैं. एक जो हमें जल्दी लर्न हो जाएगा उसमें, क्योंकि अकम्प्लिश भी करना है ना, अकम्प्लिशमेंट्स कंट्रीब्यूट करने वाली है, हमारा स्ट्रेस कम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, लर्न भी करना है, राइट? सो दैट वे. एंड देन हेवी टॉपिक करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना. हर 25 मिनट्स के बाद वी आर गोइंग टू गिव अ ब्रेक. पोमोडोरो टेक्निक, आई थिंक, आर यू ऑल अवेयर ऑफ इट? Can you please share the full form of Pomodoro? पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर आपने काफी सारे वो वीडियोस देखे होंगे कि एक 4 स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं टाइम को. तो छोटे छोटे ब्लॉक्स पे मे बी 20 मिनट्स का एक स्लॉट होता है, एंड देन यू कंटिन्यूअसली डू दैट टास्क फॉर दैट टाइम, एंड देन आफ्टर एवरी 20 और 25 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक, और 4 पोमोडोरोस के बाद यू टेक अ ब्रेक. तो दैट इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक. मतलब इट इज लाइक स्प्लिटिंग योर, हम लोग बोलते हैं ना 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है. अटेंशन स्पैन हम सबके शॉर्ट है, और 20 मिनट्स अगर है तो 20 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली करना है विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. जो ब्रेक लेने वाले हैं वो शॉर्ट होने वाले हैं, क्रिस्प होने वाले हैं, और इनफैक्ट उस ब्रेक में हमें स्क्रीन टाइम नहीं स्पेंड करना है, क्योंकि अगेन उस स्क्रीन टाइम अगेन वो हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं उसको ऑल्टर कर देगा, और फिर मे बी अगर कोई हमने सीरियल देखना शुरू कर दिया तो वापस उसकी क्यूरोसिटी वही चलता रहेगा, मतलब उसमें से ब्रेकआउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा.
सो अगेन यहाँ पर ब्रेक के टाइम पे क्या करना है, इवन दैट हैज टू बी डिसाइडेड। तो आपका रेगुलेशन म्यूजिक सुनने से होता है, आप मे बी ड्राइंग कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आप मंडालास कंसंट्रेशन एनहांस करते हैं, तो मतलब आप स्टेट चेंज कीजिए, इवन वॉक करके आ जाइए, थोड़ी देर पानी पी के आ जाइए, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खा के आ जाइए, बट देन उस ब्रेक में भी क्या करना है, वो स्क्रीन टाइम नहीं होने वाला। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके ये जो स्लॉट्स है बहुत ब्यूटीफुली चलेंगे। सो दिस इज वन। एंड देन वापस जो एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब इट्स लाइक टेकिंग योरसेल्फ थ्रू दैट होल प्रोसीजर, राइट। सो जो एग्जाम होने वाला है, तो इट्स लाइक आपने रिहर्सल कर लिया कि हाँ, ये एग्जाम है, मैंने किया हुआ है, आई नो हाउ टू डू इट। और इसमें जो ये सेम क्लोथ्स और सेम शूज, जो ये अटायर में या सेम एनवायरनमेंट में सेम टाइम पे करना, तो इट्स लाइक अगेन आप रिहर्सल कर रहे हो, अपने आप को ये बता रहे हो कि यस आई कैन डू इट, मैंने किया हुआ है, यू नो। सो ये सारे जो है, ये आपके खुद के लिए सजेशंस है, और आपको खुद को एम्पावर कर रहे हैं, इफ यू हैव डन इट बिफोर, कि हाँ ये तो मैं कर लेता हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो next day when you actually perform that exam, so you will be comfortable. So it's something like you go through that procedure completely, and then you trust yourself. This is contributing in creating a state of mind wherein you trust yourself more, and you gear up for that exam. Then अगेन आई स्ट्रेन हो रही है, तो आप जब ब्लिंक करते हैं तो आपका जो ड्राइनेस है, मतलब टीयर्स सीक्रेट होता है, ड्राइनेस इज टेकन केयर ऑफ। एंड देन अगेन ये एक्सरसाइज जो बताया है कि 30 मिनट्स तक यू लुक एट समथिंग फार, और यू लुक एट अ डिस्टेंट थिंग फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, अगेन इससे फिर कंसंट्रेशन एनहांस होता है। आई बॉल एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली अवेलेबल है नेट के ऊपर, और यू कैन स्ट्रेच योर हैंड आउट। ये सारी एक्सरसाइजेस आप जो आईज वाली करने वाले हैं, इससे कंसंट्रेशन एनहांस होता है। वॉश करो, उससे भी मतलब ठंडक आती है, मतलब आइज तो सबसे ज्यादा काम कर रही है, और आइज का कंट्रीब्यूशन कंसंट्रेशन में बहुत हाई होता है। टेक केयर ऑफ योर आइज। फिर लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ये एक एक्सरसाइज, आई बॉल एक्सरसाइज है। इससे अगेन आपका फोकस बढ़ता है। रिवर्स रीडिंग एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। लेफ्ट टू राइट जैसे हम पढ़ते हैं, तो राइट टू लेफ्ट आप पढ़ना शुरू कीजिए, एफर्ट लगता है, और थोड़ी देर जब आप ऐसा कर लेते हैं तो फोकस आ जाता है। और एक्सरसाइज अगेन ऑक्सीजन के लेवल्स को इंक्रीज कर देता है आपकी। अगेन वो स्टेट, जो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप थोड़ा सा चल के आ जाओ, तो वो स्टेट चेंज हो जाती है, आप वापस, मतलब ब्रेन के लिए वो रेस्ट होता है, आप फिर से रेडी होते हो नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए। और इनफैक्ट पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें आपको याद रखने, क्यू कार्ड्स बना लीजिए, उनके ऊपर फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपको वापस देखने की जरूरत है, आप उसके ऊपर लिख लीजिए। अगेन दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। और रिवीजन और रीडिंग, इनफैक्ट मतलब पूरी पढ़ाई दोबारा नहीं करनी होती रिवीजन, बस बस कुछ इंपॉर्टेंट आप ये कार्ड्स बना लेंगे, फ्लो चार्ट्स बना लेंगे, या फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में, जैसे भी व्हाटएवर हेल्प्स यू, उसको एक शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आप लिख लेंगे, रिकॉल करने में, रिवाइज करने में अगेन आपको हेल्प होने वाली है। और फिर एफर्मेशंस, अगेन एफर्मेशंस, आपको किस बात का डर लग रहा है, यू कैन चूज, सारे नहीं। आई एंजॉय द सब्जेक्ट्स आई एम स्टडीइंग, आई इजीली अंडरस्टैंड एंड रिटेन व्हाट आई स्टडी। इसमें से जो रेलेवेंट है, 7-8 आप चूज कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट रिपीटिंग दैट। अब इससे वही है कि कॉन्शियस माइंड जो है सब कॉन्शियस में चीजें डाउनलोड कर रहा है, तो बार बार सुनने से वो ऑटोमेटिक, आप बिलीफ सिस्टम आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आई एम वेरी फोकस्ड इन माई प्रिपरेशन फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स। every day, in every way I'm getting better and better. एक बहुत beautiful सी exercise I would like to suggest here is just write a letter to yourself congratulating कि आपने ये ऐसे ठीक ठाक कर लिया है, तो it helps, it works beautifully, कि आप फ्यूचर में जाके, और अभी वाला जो मोमेंट है उसमें आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, वाओ यू डिड इट सो वेल, इट वर्क्स। और फिर इनफैक्ट मेमोनिक्स पे वर्क करना, कि लर्न करने की टेक्निक्स, और रीडिंग हैबिट है तो बहुत ब्यूटीफुली आप स्टोरी के फॉर्मेट में कुछ भी डिसइंटरेस्टिंग चीजें भी आप ब्यूटीफुली लर्न कर सकते हो।
If you want, I can give you a demo on that कि कैसे लर्न कर सकते हैं. हम लोग फॉर्मूलाज याद करते थे ना. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा कॉस थीटा tan theta. Then something like if you remember, we used to remember हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं. तो कौन सा वाल्व किस साइड पे होता है? बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व. तोताराम बनवारी लाल हार्ट स्पेशलिस्ट. सो लॉट ऑफ Very nice. है Wonderful. ना. Tutaram is tricuspid on the right and bicuspid on the left. So very easily you can remember things also. मतलब हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी चीजें स्मार्ट, जैसे स्मार्ट स्टडी, ये सब पहले करना पड़ेगा. But then get them tuned to all this. Just empower them. जैसे भी बच्चों को empower कर सकते हो, उनको empower करना है. I have a perfect memory and I can recall with ease. तो डेफिनेटली कैसे करना है वो आपको बताना पड़ेगा. मतलब बोरिंग से बोरिंग चीज अगर आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो ना, उसके आसपास आप लर्न कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली लर्न कर सकते हो. इसमें एक फूड वाला पार्ट भी है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि खाना कैसा खाना है. दैट इज अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. स्पाइसी या जंक फूड नहीं खाना, और अननेचुरल प्रिजर्वेटिव्स वाला नहीं खाना. मिल्क which has been on from the last 50 years. हम लोग दूध बहुत जरूरी बेसिस पे पीते हैं, बट देन स्लो डाउन करता है, वो आपके ब्रेन को स्लो करता है. तो उसको अवॉइड करना है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. और सिंपल शुगर्स अगेन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं. आपको एकदम से गश ऑफ एनर्जी आएगा, फिर लो हो जाएगा, मतलब वो क्रेस्ट और ट्रफ्स क्रिएट होते रहेंगे. तो चीनी वीनी एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है. एंड देन कुछ हर्ब्स है जो आप ले सकते हो. अश्वगंधा, ब्रह्मी, रोडियो रोजिया, मतलब कुछ हर्ब्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं. नट्स, स्लाइड स्नैक्स ले सकते हो. और हाइड्रेटेड तो रहना ही है, पानी रेगुलर बेसिस पे पीना है, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और यस, फ्लैश कार्ड्स, हाँ फ्लैश कार्ड्स तो पहले से क्रिएट किए होंगे तो हेल्प होगा. और फ्लो चार्ट सीक्वेंस में लर्न करना ना कुछ, तो मतलब ब्यूटीफुली वर्क करता है. कि मतलब आप सीक्वेंस में उसको लिखते चले जाइए और उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं इजीली. दैट वर्क्स वंडर्स. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट? सो अगेन ये इतनी सारी एफर्मेशंस हैं, बट यस दे डू वर्क. लेटर लिख लीजिए आप, या ये रिपीट करना है. अगेन ये दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग, सोने से पहले और उठने के बाद. अगेन सबकॉन्शियस माइंड तब ऑन हो रहा होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं, और सोने के उठने के बाद अगेन यू कैन स्टार्ट योर डे विद सम ब्यूटीफुल एफर्मेशंस टू एम्पावर योरसेल्फ. और यस इसमें इमोशनल रेगुलेशन भी, कि डेफिनेटली जब हम ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं तब भी एंजाइटी होती है, ज्यादा डर लग रहा होता है या व्हाटएवर. तो अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है, मैं अपने आप को इमोशनली कैसे रेगुलेट कर सकती हूँ. अगर वो नहीं पता, पेरेंट हेल्प कर सकते हैं, बट यस दैट वर्क्स. एंड देन वन हैज टू लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस. कि वही मैंने जैसे बोला कि एक टेबल के ऊपर अगर वो टॉप भी पड़ा हुआ है, उसको हम ऐसे से बार बार हिला रहे हैं, या कोई चीज है जो बार बार मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वी हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. और मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होता है कंसंट्रेशन में. इट्स अ मिथ. आई डोंट बिलीव इन दैट. एक टाइम पे एक ही काम करना है, और तब उसको आप जल्दी कर सकते. वन थिंग एट अ टाइम आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे. आप उसको ऑब्जर्व करके देख लेना कि मैं ये भी शुरू कर लेता हूँ, वो भी शुरू कर लेता हूँ. यस सब्स, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yeah, I just wanted to ask one thing. Suparna here. My line यस. doesn't come in full. Yeah, Yeah. just wanted to ask, as because it says that no multitasking and all. I've seen that many students, they prefer, they when they are doing maths, they listen to music. That's all right. So is that multitasking? Because your senses are involved, like hearing be ho raha hai, or then you're also introducing using your brain for the mathematics and all that. So how does it go together? So maths is done by doing. मतलब यू प्रैक्टिस, लिख के प्रैक्टिस करते हो, राइट. और म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है, मैथ्स के साथ म्यूजिक बहुत अच्छा चलता है. सो दिस इज लाइक व्हाट आई शेयर्ड विद यू. as many senses as you can involve while studying something.
सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैथ्स के टाइम पे म्यूजिक बहुत ब्यूटिफुली वर्क करता है, और लाइट So when my म्यूजिक, आई थिंक son says, इंस्ट्रूमेंटल. sorry, because मेरे बेटा करता है, so हाँ, whenever my son says, so that means it's fine that he can do it in that way if इट्स फाइन, that brings एब्सोल्युटली him फाइन. concentration. Maths and Okay, music goes beautifully well. And okay, in thank you fact, so when much. he's writing down those solutions next day, he will remember that music also. Let me tell you that. Your brain always works on associations. Like I shared, next day आप लिख रहे हो, आप बोलो अरे उस टाइम हलवा बन रहा था, उसकी खुशबू आ रही थी, all that. You remember all of that. So he'll remember that specific Yes. music also. Yeah, right, yes. So it's going to help him. No worries on that regard. हाँ, टीवी नहीं देखना. That is going to create some problem. मैं टीवी देखते देखते पढ़ रहा हूँ, नहीं, वो नहीं चलेगा बिल्कुल. स्क्रीन तो अगेन ऐसी वेव्स एमिट करता है जो अगेन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब करता है. सो दैट इज नॉट टू बी डन. वो तो बिल्कुल भी नहीं है. और जितना मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना वो मॉनिटर करने की जरूरत है. मतलब बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मोबाइल अपने पास रखे बैठे, नहीं, वो तो हटाना पड़ेगा. और यू हैव टू गिव रीजंस फॉर दैट. तो पहले से बड़ी क्लियरली बच्चों को समझाना है कि ये इतने बजे तक इतना फिनिश करेंगे, ठीक है. मोटिवेट योर चाइल्ड इन दैट रिगार्ड्स, और रीजन देना है कि ये हमें इतना काम इतने टाइम तक हमें फिनिश करना है. और जितना मिनिमम स्क्रीन उस टाइम हो, मतलब अगर उसके वर्क से भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम से मिनिमम एक्सपोजर देना है. दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि इससे तुम्हारी जो एबिलिटी है, जो 20% जो हमने एफर्ट करा है ना, और जो हमें 80% रिजल्ट चाहिए, वो डिले होता जाएगा, वो पाइल अप होता रहेगा, काम जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा, तो फिर स्ट्रेस हमारा बढ़ता रहेगा, तुम्हारा भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा. वो क्लियरली फर्म होना बहुत जरूरी है पेरेंटिंग के अंदर. और प्यार से, इस टाइम पे थोड़ा प्यार से, क्योंकि अगेन स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. हाँ, आप बार बार आके फोन उठा के लेके जा रहे हो, ये ले जाओ मैं बाहर, मतलब अगेन यूर ट्राइंग टू होवर, वो नहीं करना. ये शो करना है कि हाँ, आई ट्रस्ट यू, बट हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगेन ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे. उसी काम को करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा. कर लो, फिर ब्रेक ले लेना, देख लेना किसके मैसेजेस आए हैं. एकदम स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, और यस, अंडरस्टैंडिंग तो हमें होना पड़ेगा, बट देन फर्म भी होना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलेगा. Then again, A is to you have to come in agreement to your values, कि मैं अपनी एनर्जीज को चीटिंग में और कुछ नेगेटिव कुछ प्रैक्टिसेस करने में मैं वहां पे स्पेंड नहीं करने वाला. मुझे ईमानदारी से सिंसियरली पढ़ के, और तब मुझे एग्जाम में कुछ करना है. सो कमिंग इन एग्रीमेंट टू आवर वैल्यूज, अगेन ये पहले से आपने कम्युनिकेट किया होगा, और फिर देन द चाइल्ड कैन रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट इट, कि बहुत जरूरी है. क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जब भी आएंगे, दे आर गोइंग टू ड्रेन ऑफ योर एनर्जीज. लीकेजेस है ये, मतलब ये आपके, ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए ये करने वाला है, ये आप अपने लिए करते हो. बीइंग इन एग्रीमेंट विद योर ओन वैल्यूज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये किसी के लिए ईमानदारी जरूरी नहीं होती, ईमानदारी हमें एम्पावर करती है. सो वी आर लाइक दैट, we feel empowered, we feel strong. Then paying attention to manage yourself. अब शाम हो गई है सपोज, तो हाउ डू आई नीड टू मैनेज. अब कितना हो गया है, कितना बचा है, मैं कोई और स्ट्रैटेजी मतलब यूज करूं, ये डिफिकल्ट है, इसको छोड़ दूं. मतलब यू नीड टू बी एबल टू असेस आवरसेल्व्स. और नहीं तो, अगर नहीं कर सकता, तो यू गो एंड हेल्प योर चाइल्ड इन दैट रिगार्ड. अभी टेंशन होना शुरू हो गया है, कल एग्जाम है, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलेबस, इमोशनली कैसे उसको संभालना है, रेगुलेट कैसे करना है. सो पे अटेंशन टू मैनेज योरसेल्फ. हाउ नाउ इट हैज टू बी कैरिड ऑन. अब क्या करना है, अब ये हो गया, जो होना था हो गया, अब क्या करना है. अब ये छोटे छोटे स्टेप्स, अगेन दे आर गियरिंग द चाइल्ड फॉर द नेक्स्ट डे. सो वही टाइम से सब कुछ फिनिश करना, और स्ट्रेस ना होने देना, पाइल अप ना होने देना. दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर. अगर नहीं हो रहा, तो अब फिर मैनेजमेंट पे आना पड़ेगा. एंड एडजस्ट योर अप्रोच, कि भाई अगर सोचा था कि सारा इतना इतना पढ़ना है, नहीं हो पा रहा, अब कोई बात नहीं, आप अप्रोच को चेंज कर सकते हो. और थिंक अबाउट द वेज हाउ नाउ इट हैज टू बी अकम्प्लिश्ड. कितना आराम से अकम्प्लिश हो सकता है, कितना आराम से कर सकते हो बिना टेंशन लिए. अब जो हो रहा है सो हो रहा है, एंड देन मूव ऑन. टेंशन नहीं लेनी है उसकी. और देन अगेन एफर्मेशंस में अगेन ट्राई टू राइट अ लेटर उस टाइम पे, कि यस यू हैव डन इट. बहुत बार ऐसा होता है कि इफ यू
you have learned something you don't remember at that point of time, and because you're not confident at that time, your self esteem is low, you are anxious, you are stressed, all that. तो जो आता है उसको पूरा पूरा परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट स्टे कूल एंड काम, स्ट्रेस फ्री रहना, एंग्जाइटी नहीं लेनी, क्लियरली कम्युनिकेट करो बच्चों को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू stay in a cool and calm and composed state of mind. Then only we will be giving out our best. जो आता है एटलीस्ट उतना अचीव कर पाएंगे. Again, X is to be able to exchange your thoughts with your parents and ask for help. अब स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, हाउ यू आर फीलिंग, कितने कॉन्फिडेंट हो, और अभी भी डर लग रहा है, अभी भी या कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, वट एवर, जो भी फील कर रहे हो, वो सारे थॉट्स को पेरेंट्स को एक्सप्रेस करो. और फिर डेफिनेटली द पेरेंट कैन इवन नरेट अ स्टोरी, हग कर सकते हो आप, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, और बच्चा हेल्प मांगे और आप उसको प्रोवाइड करो. दिस इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एम्पावर करना है, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, अक्नॉलेज करना है, और फिर देन वी हैव टू फाइंड आउट वेज टू मूव ऑन, आगे कैसे बढ़ना है. देन वी कैन हेल्प देम टू द ऑप्टिमम. सो डेफिनेटली जो विनिंग जो है एक माइंडसेट होता है, अगेन वो बिलीफ होता है, अपने अंदर एक विश्वास होता है. उस विश्वास को क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे हम मूव ऑन कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट ऑल द डिफरेंस. एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक आवर चिल्ड्रन forward and give out their best. So again, स्टिल वाटर्स विद नो रिपल्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटीज बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है, उनके पास रीजंस क्लियर होते हैं, क्या करना है, क्यों करना है. जब रीजंस होते हैं फॉलो करते हैं, एंड डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट, 20% एफर्ट से इतना सारा रिजल्ट लाकर दे देते हैं. 20% ऑफ योर एफर्ट्स, इफ यू वर्क इन अ फोकस्ड मैनर, 80% रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो. सो आई थिंक हमारे बच्चे जब रिलैक्स्ड होंगे, डरे हुए नहीं होंगे, क्या गलत हो गया, क्या सोचा था, क्या प्लान था, वैसे नहीं हुआ, स्ट्रेस नहीं होगा, ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंट होंगे, आई थिंक दे विल शाइन इन their lives, in their exams also. So I think now if you have any questions you can ask me. I'm ready to answer all your questions. Thank you, Ruby ma'am. Thank you. It was such a awesome session. I'm sorry I'm not in a situation to turn on my video, though I wanted to give you a virtual hug and cheers. Thank you so much. Wonderful job done. Thank you. Thank you so much. Wonderful, Ruby ma'am. Wonderful. The strategy you use to combine all the cluster, all the similar topic, and the word you use, the relax, it is really very good and very helpful. Thank you. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Thank you, Kavita. Thank you, ma'am, for the imbibing session. Really Thank you so understood much. the basic concepts. Thank you so much. Ruby ma'am, Amrita here. Am I audible? Can I ask you a question? Yeah. Yes, sure. Okay. So I just wanted to ask you, there are kids who complain even if they अच्छे तरीके पढ़ने के बाद भी they won't be able to express it via writing. So is there हाँ. any technique on writing technique so that they can express their whatever they have learned effectively to the paper? Or there may be slow writers also. ओके. सो वेल, आई थिंक मनीष सर तो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं इसके ऊपर, राइटिंग टेक्निक्स कैसे बिल्ड ऑन करनी है. इनफैक्ट एक्सप्रेशन से पहले क्या होता है, इफ यू गो बाय द बेसिक्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, LSRW, लिसनिंग से स्टार्ट होती है लैंग्वेज, राइट? यू लिसन टू वर्ड्स एंड देन व्हाट हैपेंस, स्पीकिंग, मतलब एक दिन अचानक बच्चा वर्ड्स बोलने लग जाता है, सुन सुन के बच्चा बोलने लग जाता है. एंड रीडिंग एंड राइटिंग कम्स लेटर. मतलब क्या है, पहले तो सुनना, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग. लिसनिंग से स्पीकिंग आती है, और रीडिंग आप पहले करते हो. अगेन रीडिंग के स्टेप्स होते हैं, मतलब यू रीड अलाउड टू योर चाइल्ड, बहुत सारे वर्ड्स बच्चा सुनता है, फिर रीड अलोंग वाली स्टेज आती है, आपके साथ बच्चा बोलता है मम्मा चुप 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 मैं बोलूंगा, एंड देन कम्स रीड अलोन. रीडिंग हैबिट आ गई, बहुत सारे वर्ड्स फीड हो गए, उसके बाद एक्सप्रेशन आता है.
then the child starts expressing, right? अगर सबसे पहले एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो यू नीड टू रीड टू योर चाइल्ड वन। और राइटिंग की तो बहुत सारी टेक्निक सर ने हमारे साथ शेयर करी आई थिंक उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, है ना। स्लो राइटिंग, ये सारी चीजें तो, ये सारे चैलेंजेस है, हमें वर्क करने हैं, इतनी सारी टेक्निक्स है हमारे पास। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। Asha, no queries. Wonderful session, ma'am. Superb. That was Sir, I really have a sir. engaging. question. Sir, I have a question. Sir, I have a question. Actually, I was listening to all of the coaches. Ma'am, I have a question. As your session was so wonderful, and I learned a lot in this session. Thank you so much. Coach. So can you regarding some brain exercises as you have given, and I have noted all the brain exercises. Please, ma'am, please, if you have some extra time, please mention 2 or 3 brain exercises so that we can give to our children. So there are few techniques, like mandalas is a beautiful technique you can utilize. It's like, it's very small spaces have to be filled with color and different colors. So it's very interesting. It's like it brings in a flow when you start coloring that. It brings in a flow and you feel relaxed the moment you start doing it. You can buy books on mandalas or you can even create that yourself. That is one. And then something like a small activity, you just pick up a piece of newspaper also and just look for the capital letters, one capital letter of A's. Just find out all the A's on that page. So you need to focus, actually look out for those alphabets, they're all hidden. So take a sketch pen and start doing that. It's very interesting. All these activities are very interesting. You start doing it and you bring back your focus. There are some, and sir had shared that Trataka technique also, if you remember. So on your eye level, you put that source of light and you keep staring at it, and then, it grows bigger and bigger. So it's like, your focus and concentration coming back. So after doing all these exercises, when you sit down, you'll be achieving more in less amount of time. So you're in a state of mind where you can focus better, you can concentrate better. And definitely only when you concentrate, you understand. And when you understand, you're able to express yourself. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was wonderful session. Thank you so much. So thank you, ma'am. Thanks, Atan. Thanks to all of you. And most of the Thank you, sir. participants were there from start till end. So that shows that the session was really very engaging. So I'm grateful to all of you for your presence. Tomorrow we will be meeting at same time. Tomorrow's session will be by Dr. Sreen Seni at the same time, 6 o'clock. See you all tomorrow then, sir. Thank you so much, everyone. Thank you. Recording I'll Thank share. you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, Ruby Thank ji. you. Thank you. Thank you, Ruby ji. Thank you. My pleasure. Thank you so much. Thank you, ma'am.